Such a joy for us to welcome Pastor Zach Abraham to our fifth session of our annual fasting and prayer. And some of you know him, but I'll give a short introduction for the benefit of those who don't know him, and I'll also uh, um, perhaps also repeat in Hindi. So Pastor Zach Abraham हमारे बीच में हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रार्थना सभा के लिए. And I'll give अभी उनका एक short हम introduction करेंगे. So, well, Pastor Zach Abraham, he worked for the British government for some years, and during that time, he was also serving as an elder for 7 years of the Church of the Living God. And since 2004, he has been pastoring this church with all his time, and he's been investing all his time and energy. And praise God that for the impact God has given this church in London. And he has a wonderful wife called Elizabeth, and he has 4 wonderful children, Jonathan, Daniel, Jemima, Jerusha, who love the Lord. And also for me at a personal level, Pastor Zach is a big brother for me in my heart. I have learned many things from him, and someone that is close to my heart and has impacted my life and my journey in the Lord in a special way. He's a wonderful teacher of the word, and I'm sure you're going to be blessed as he will bring the word of God to us. Pastor Zach जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे कुछ साल, और उस समय में प्रभु के साथ चले और वो अपने चर्च ऑफ द लिविंग गॉड में उन्होंने एल्डर का काम किया अपने नौकरी के साथ. और उसके बाद 2004 से पूर्ण रूप से प्रभु सेवकाई में पास्टर का उन्होंने रोल अदा कर रहे हैं इस चर्च में. और उनकी वाइफ बहुत एक वंडरफुल एक गॉडली वाइफ है उनकी, एलिजाबेथ, और 4 बच्चे हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं, जोनाथन, डैनियल, जमाइमा, जरूशा. और मेरे लिए वो एक बड़े भाई के समान हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने एक स्पेशल वे में मेरी जर्नी को प्रभु में इम्पैक्ट किया. तो और वो इज अ गुड टीचर, और वचन के प्रभु के वचन के बहुत अच्छे टीचर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस सेशन में परमेश्वर हमें जरूर प्रोत्साहित करेंगे उनके द्वारा जो वचन सुने. So, okay, so over to you, Pastor Zach. Firstly, thank you very much. Can you hear me all right? Yes. Okay, great, thank you. Thank you very much for this opportunity. I'm not sure whether the lighting works or not, but hopefully you'll be able to see. Let's just start with a word of prayer. Father God, we turn to you right now and ask you to help us as we work with your word. And I pray, Lord God, that this word would be imprinted into our hearts, and that as a result, Father God, our lives will be transformed to be more like Jesus. I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, I'm going to read some scriptures, and then the very first thing I'll do is give you a PowerPoint. Okay, अभी पहले मैं कुछ समय वचन से बात करूंगा और उसके बाद एक PowerPoint भी मैं इस्तेमाल करूंगा. The first scripture is in Matthew chapter 3, verses 1 to 3. It says, Go ahead. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight." मत्ती 3:1-3. उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया. वे यह कहकर प्रचार किया करता था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. ये वही है जिसका वर्णन यशाया नबी ने यह कहते हुए किया था, जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पीछे सीधे बनाओ.
Okay, we're going to go to Matthew chapter 4, verses 23 to 25. And it says, "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of diseases among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics and paralytics, and he healed them. Great multitudes followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan." मत्ती 4 का 23 और 24 पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता, और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रस्त थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मृगी वालों को, लकवे के मारे हुए को, सब को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Okay, I'm going to be talking about the importance of the kingdom of God. That's the title, the importance of the kingdom of God. और मैं आपसे वचन जो बांटना चाहता हूँ कि जो प्रभु का जो राज्य है वो कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। And the very first thing I'm going to do is put a PowerPoint presentation up. और मैं एक पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा जिससे मुझे उम्मीद है आपको मदद मिलेगी। And hopefully you will be able to see it. Can you see that? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि डिफरेंट जो एजेस थी उसके हिसाब से जो सत्य एप्लीकेबल था, अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हमारे लिए हम बहुत कंफ्यूजन में आ सकते हैं प्रभु के राज्य के बारे में ठीक से समझने के। Okay, so the dispensational understanding means that God has put the scriptures into different time periods. और ये डिस्पेंसेशनल अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अलग अलग भिन्न भिन्न समय के टुकड़ों में अलग अलग प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने बात किया। All right, and so we will be concentrating on the kingdom of God, but I want to just help you understand the different dispensations. हम किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ समझने के लिए कि परमेश्वर ने जो एजेस हैं, जो समय के टुकड़े थे स्टार्टिंग से, किस हिसाब से प्रभु का सत्य अप्लाई करता था प्रभु के साथ, वाचा लोगों के साथ, उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगा। The three major dispensations are the time of very little supervision, the law, and then the kingdom. तो और ये जो अगर हम समय को बांट के देखें डिस्पेंसेशंस में, डिफरेंट भिन्न एजेस में, समय के टुकड़ों में, तो पहला हुआ वो समय जिसमें बहुत कम सुपरविजन था, दूसरा हुआ जो व्यवस्था, द लॉ या व्यवस्था, मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी, और तीसरा प्रभु का राज्य। So the first period runs from Adam all the way through to Moses, and if you look below the dark line, you'll see that the time of very little supervision runs from Adam all the way through to Moses. और जो पहला जो डिस्पेंसेशन है, समय का जो टुकड़ा है, जिसमें परमेश्वर ने सत्य की बात एक यूनिक तरीके से करी, वो था, पहला था आदम से लेकर मूसा तक। And in that time period, God did very little in terms of interfering with what was going on with mankind, and he did it for a reason, because he wanted to deal with a philosophy that was present that says, if you leave us alone, we'll sort our own mess out.
और हम देखते हैं कि जो ये जो समय काल था, इसमें परमेश्वर का जो हस्तक्षेप था, वो काफ़ी कम था, क्योंकि परमेश्वर एक तरह से उनको ये दिखाना चाहते थे कि ये जो लोग मानते हैं कि भई तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूँगा, कि ये कितना गलत एक फिलॉसफी या तरीका है सोचने का। And what became very evident was that when he did that, people got into a horrendous mess. और हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने इस समय काल में हस्तक्षेप कम किया, तो परमेश्वर ने प्रूव किया लोगों की इस थॉट प्रोसेस को कि भाई हमारे को अकेला छोड़ दो, हम अपनी प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रभु ने फिर को प्रूव किया कि बहुत सारे उन्होंने मेस में वो लोग आए, और प्रभु ने प्रूव किया कि भाई तुम्हें मेरी जरूरत है, और तुम्हें अकेला छोड़ने से तुम्हारे लिए भलाई नहीं हो सकती, उत्पन्न नहीं हो सकती। The law, which is the next dispensation, started with Moses and went all the way through to John the Baptist. और जो दूसरा समय काल है, ये व्यवस्था का समय काल है, जो मूसा से लेकर और जॉन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस तक है। And the law was given to show God's righteous standards and to prove to mankind that we could not keep his required standards. और जो व्यवस्था है, ये परमेश्वर ने दिया था ताकि लोग समझ पाएं कि हम अपनी शक्ति से परमेश्वर के जो धार्मिक स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम नहीं रख सकते। हमें एक सेवियर की जरूरत है। Whilst the law was good, the Apostle Paul also teaches us that the law had a ministry which is to bring us to the point where we would say we can't keep it, so we're dead. और जो व्यवस्था है, ये खुद में तो अच्छा है, लेकिन व्यवस्था हमें इस मुकाम पर लेके आता है कि हम कहते हैं कि भाई मैं अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से ये व्यवस्था को नहीं रख पा रहा हूँ, और मैं तो मरा हुआ। And then John the Baptist ushered in a new dispensation, which was called the kingdom of God or the kingdom of heaven. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है, उनके साथ एक नया समय काल शुरू हुआ, जो था परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। And in that dispensation, we have an introduction of something that is utterly amazing, which we will be delving into a little bit more in a second. और ये जो समय काल है, परमेश्वर राज्य का समय काल, इसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही अद्भुत नई शुरुआत हम देखते हैं। And as you can see, it's divided into lots of different subsections, but the first little bit was that the Jews reject Jesus. और ये carry on. And the second is that we have the creation of the church, and the church has a definite time period, a church age, where it starts and finishes. And then we have the salvation of the Jews, going into a period called the millennium, which is a 1,000-year reign where Jesus comes to reign on the earth. And then finally, we have what I've called eternity. और इस समय काल में जो परमेश्वर का राज्य है या स्वर्ग का राज्य है, इसमें हम देखते हैं कि काफी सारे सब सेक्शन है। पहला जो यहूदी हैं, उन्होंने प्रभु यीशु रिजेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया की स्थापना, कलीसिया का स्टार्ट और एंड एज है उसका चर्च एज। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदियों के लिए जो स्पेशल जो सैल्वेशन या उनके उद्धार जो बुद्ध रीति से आती है। और फिर हम देखते हैं मिलेनियल 1000 साल का प्रभु यीशु का राज्य। और उसके बाद अनंत काल का समय, इटर्निटी का अनंत काल का समय। And we could spend a lot of time looking at this, but I'm just going to stop the share there so that we move on to the main emphasis of the teaching. और अब मैं जो है कुछ समय अब आपको परमेश्वर के राज्य, ईश्वर के राज्य के ऊपर अब हम फोकस करके मैं टीचिंग दूंगा। So the significance of the kingdom of God is the rule and reign of Jesus as king that came to overthrow the kingdom of darkness. और इस स्वर्ग के राज्य में, प्रभु के राज्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि प्रभु जो है राजा की तरह
हमारे बीच में इनका जो राज है, और जो अंधकार का जो राज्य था उसको उन्होंने ओवरथ्रो किया। So to understand this, you have to really go back to the fall. और अगर हमें इस राज्य को, ये प्रभु के राज्य को समझना है, तो सबसे पहले हमें वो समय में जाना पड़ेगा जहाँ पे आदमी पाप सबसे पहले जब हव्वा और आदम ने पाप किया। And when we go back to the fall, we find out that God set up a governorship of the earth, and He made Adam the governor. और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब आदम को परमेश्वर ने रचा था, तो उसको परमेश्वर ने गवर्नर बनाया था पूरे धरती का, और ये समझना बड़ा जरूरी है। There is an English word that is the word suzerain, which is a delegated authority that is given from a higher power to a lower power to govern. इंग्लिश में एक वर्ड है सुजरेनिटी, जो बेसिकली ये है कि एक शक्तिशाली राजा एक छोटे राजा को एक शक्ति देता है, अपनी अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है कि भाई मेरे नाम पर अब तू राज कर सकता है। This is really important because we have to understand that God is a God of integrity. So when He gave Adam the authority over the earth, it was a legal transaction. और परमेश्वर जो है बहुत ही इंटेग्रिटी से चलने वाला परमेश्वर है, और उन्होंने जब आदम को ये अधिकार दिया, तो और एक तरह से अपने आप को उन्होंने लीगली भी उसको बाइंडिंग है उनके ऊपर कर लिया। And on the earth, apart from Adam and the animals, was a person called the devil. और हमें पता है कि धरती पर शैतान भी उस समय था, आदम हव्वा और शैतान भी था उस धरती पर। And all his underlings, his demons. और उसके जो पिशाचों की जो उसकी सेना है, वो भी उसके साथ काफी सारे थे। And God had given Adam a commission, which was to be fruitful, multiply, but also to rule and to subdue. और परमेश्वर ने जब आदम को हवा को बनाया, तो उनको ये भी एक मैंडेट दिया था कि भाई तुम्हें आप फलो फूलो, और ये भी कहा था कि भाई तू जो है अब मेरे तू रूल कर, तू मेरा जो तू शासन कर इस धरती पर, और इसको तो अपने अधिकार में रख। And to rule and to subdue implies that there is something there that doesn't want to be ruled and subdued. और इसका तो ये भी है कि अगर प्रभु ने आदम ये कहा कि भाई अब तुझे समय लगा और शासन कर और अपने अधिकार में चीजों को ले, इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो अधिकार में नहीं आना चाहती और जिनको अधिकार में लेना पड़ता जाके। So we understand that the devil was part of God's assignment for Adam to rule and subdue. और हम इससे समझते हैं कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया आदम को, तो उसको वो अधिकार इवन जो शैतान और उसकी जो सेना थी उसके ऊपर भी वो अधिकार था, और उसको भी अपने अधिकार में रखना था। The devil had already fallen from heaven and was placed on earth as a sort of a holding prison until he was going to be thrown into the lake of fire. और उस समय जब आदम को परमेश्वर ने रचा, उस समय धरती पर ऑलरेडी शैतान जो था वो पटका गया था धरती पर, और वो एक तरह से वो वेट ही कर रहा था कि उसका क्या कुछ समय के बाद उसको जो आग की जो नदी है उसमें उसको फेंका जाए। But as we know, Adam sinned because the devil tricked Eve, and Adam, who was right there beside her, gave the authority of the earth by obeying the devil. और हमें ये दुखद बात पता है, हमने अपने बाइबल में पढ़ा है कैसे शैतान ने हव्वा को कैसे छला, और उसके कारण वो उसके छल कपट में आकर उसने पाप किया, और फिर उसके पति ने भी पाप किया। So from that time onwards, the earth was legally transferred under the governorship of the devil.
और उस समय से हम देखते हैं ये बहुत ही दुखद घटना कि उसके बाद लीगली जो गवर्नर और नया अधिकारी धरती का वो शैतान बन गया। And even Jesus called the devil the ruler of the earth. और इवन प्रभु यीशु ने भी जो धरती पर वो आए थे, उन्होंने भी अपने कॉन्वर्सेशन में एक्नॉलेज किया कि जो शैतान है ये इस धरती का राजा है, ये धरती का अधिकारी है। So we could call that the kingdom of darkness. तो उस राज्य को जहां पर शैतान गवर्नर हो, उस राज्य को हम डेफिनेटली अंधकार का राज्य कह सकते। And the effect was greater than just man's sin and man being separated from God for eternity, but that the whole earth was affected by that sin. और सिर्फ यही नहीं हुआ इस राज्य के इफेक्ट से कि भाई आदमी जो है अपने पाप में प्रभु से दूर हो गया, पर हम देखते हैं कि धरती के हर एक क्षेत्र में, हर एक डायमेंशन में अंधकार का प्रवेश हुआ। Now, what I'm about to say next may concern you, but I am hoping you can understand it. And go ahead. जो मैं अब आपको अभी बोलूंगा ये आपको थोड़ा सा कंसर्न में ला सकता है, पर मुझे फिर भी बोलना जरूरी है। God could not simply overrule what the devil had done. और जो शैतान ने छल कपट से एक अधिकार लिया था, उसको परमेश्वर को भी लीगल तरीके से ही डील करना था। प्रभु ये नहीं कि जो चाहते उससे हम कर देते, क्योंकि वो फिर उनके इंटेग्रिटी के अनुसार नहीं है। God cannot just forgive people because he wants to. परमेश्वर चाहे कितना भी माफ करना चाहे, उनकी भी एक कंडीशन है जिससे वो माफी रिलीज कर सकते हैं मनुष्य को। The consequence of sin was that a man had to die. और जो आदम हवा ने इतना बड़ा जो पाप किया था, तो उसके अंदर ये जरूरी था कि अब एक इंसान का मरना, उस पाप के लिए एक इंसान का मरना जरूरी था। Romans chapter 6 verse 23 says the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. और रोमियो 6 का 23 पढ़ेंगे अभी। और रोमियो 6 और 23 में लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Okay, so something had to happen. A man had sinned, so a man had to, an innocent man had to die. So हम देखते हैं कि क्योंकि पहले आदम ने, हव्वा ने पाप किया, सो एक इंसान का ही मरना जरूरी था उस पाप को डील करने के। That is why Jesus had to come. और इसीलिए प्रभु यीशु इंसान के रूप में अवतार में धरती पर आए। And Jesus had to become a man. प्रभु यीशु को एक आदमी बनना, बड़ा मनुष्य बनना। Gabriel, the angel, could not come and die for you. गैब्रियल जो अंजल है, वो हमारे लिए आकर नहीं मर सकता। एक इंसान को ही हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरना जरूरी है। Jesus could not die as God. प्रभु यीशु सिर्फ एक प्रभु बनकर हमारे लिए क्रूस पर नहीं मर सकते थे, उनको मनुष्य बनकर आकर मरना बहुत जरूरी था, ताकि परमेश्वर की लीगल रिक्वायरमेंट इस पूरे केस में पूरी हो। Okay, so how did God then forgive sins during the period, the two dispensations before Jesus came? तो प्रभु यीशु के आने से पहले, इस समय काल से पहले जो समय काल थे कि हमने जिनके बारे में देखा, उस समय फिर किस बेसिस पर परमेश्वर माफी देते थे पापों से? What God did was he put into place what I will call a proxy or a substitute, which is given to cover those two dispensations. और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु के आने से पहले के जो दो समय काल थे,
उसमें परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया सब्स्टिट्यूट का, इस ताकि हमारे पाप ढके जा सके। And the substitute was an innocent animal और ये that जो had to die. सब्स्टिट्यूट जिसने हमारे जगह में जो सब्स्टिट्यूट था, सिस्टम जो था, ये एक इनोसेंट जानवर एक सब्स्टिट्यूट काम करे हमारे पापों को ढांपने के लिए। So these animals were pointing towards the work that Jesus was going to do. और ये जो जानवर जिनको बलि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था हमारे पापों को ढकने के लिए, ये सब पॉइंट कर रहे थे प्रभु यीशु की दिशा में, पॉइंट कर रहे थे उस आने वाले के लैम्ब ऑफ गॉड के पॉइंट कर रहे थे। Every human being from Adam right up to the dispensation that John the Baptist was talking about had to put their faith in the substitute to be rescued. और आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट से पहले तक हर एक इंसान को पाप से रेस्क्यू तभी मिलता था जब वो एक जानवर की बलि अपने बिहाफ पर एक बलि उसकी चढ़ाई जा रही, तभी वो क्षमा में चल पा रहा। So John the Baptist came proclaiming a message that the gospel of the kingdom of God was come. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, उन्होंने कहा कि भाई जो स्वर्ग का राज्य है वो तुम्हारे बीच में। And he said, repent. और उन्होंने कहा पश्चाताप करो। And the word repent in Greek is the word metanoia, which is to change your mind. और ग्रीक भाषा में पश्चाताप जो वर्ड है ये मेटानोया कहते हैं, जिसका मतलब है चेंज ऑफ माइंड, मतलब हमारे मन का फिरना, हमारे मन का फिराया जाना। When we use the English word repent, often people think of the word meaning to feel you're sorry for what you've done that is wrong. और इंग्लिश में जब हम रिपेंट या पश्चाताप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हमारे मन में यही विचार आता है, भाई चलो इसने गलती किया और अब ये सॉरी फील कर रहा है अपनी गलती को। However, John the Baptist was really saying, change your mind now because a new dispensation is starting with the kingdom of God. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो ये कह रहे थे, अपना मन फिराओ क्योंकि अब एक नया समय काल शुरू होने जा रहा है जो है परमेश्वर का राज्य। This was prophesying about the Messiah. और ये मसाया के बारे में एक भविष्यवाणी है। The word Messiah is the word anointed one. और ये जो मसाया है इसका मतलब है अभिषेक पाया हुआ। This is somebody who is anointed of the Holy Spirit who will bring about the kingdom of God. मसाया वो है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरा हुआ और उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आए। So Jesus came to be the King of the Jews. प्रभु यीशु यहूदियों के राजा बनने आए। He came to be the Messiah. वो मसाया बनने आए। And this was, as I said, prophesied, and we read about this, was prophesied by Isaiah the prophet. और यशाया भविष्य वक्ता ने इसके बारे में भविष्यवाणी पहले ही किया था। And then we had other prophets who gave us a preview of what that kingdom reign would be like. और उसके बाद और कई भविष्यवक्ताओं ने हमें एक ट्रेलर दिखाया था उनके राइटिंग्स में कि ये जो स्वर्ग का राज्य है ये कैसा होगा, इसका स्वरूप क्या होगा। So some of the things that we see with Elijah and Elisha are indicators of what that provision would be like. और अगर हम एलीशा एलीजा के जीवन के बारे में जो लिखा उसको पढ़ें
तो हमें एक अच्छा एक चित्र हम ड्रॉ कर सकते हैं उससे कि भाई परमेश्वर का जो आने राज्य है वो कैसा हो। And it wasn't just Elisha and Elijah, but I've just picked them as examples. और भी लोग हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इलाइजा एलिशा को मैंने हाईलाइट किया। Okay, then we come to Jesus now. अब हम तो यीशु और बात करते हैं। And when Jesus came into his ministry, he started saying, repent, for the kingdom of God is right at hand, right now. और प्रभु यीशु उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ है। And what Jesus did was he demonstrated the kingdom of God to the people. और प्रभु यीशु ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, दिखाया कि प्रभु स्वर्ग का राज्य कैसा है। So if we look at Matthew chapter 4, अगर हम मत्ती 4 में पढ़ें जाकर, I'm going to read verses 23 to 24. और फिर हम 23 और 24 पद पढ़ेंगे। Jesus was going throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. The news about him spread throughout all Syria, and they brought to him all who were ill, those suffering with various diseases and pains, demoniacs, epileptics, paralytics, and he healed them. मत्ती 4 का 23 और 24 में फिर पढ़ूंगा। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा, और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई और लोग सब बीमारियों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रस्त थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मृगी वाले, लकवे से मारे हुए, सबको उसके पास लाया गया और उसने उन्हें चंगा किया। I had said when the kingdom of darkness came in, it affected us in all sorts of ways. मैंने अपने प्रचार की शुरुआत में ये भी कहा कि जब अंधकार का राज्य हमारे बीच में आया तो कई भिन्न भिन्न तरीकों से, डायमेंशनों में वो अंधकार ने अपना इफेक्ट लाया। The kingdom of darkness affected our spirits, souls, and bodies. और ये जो अंधकार का राज्य आया उसने हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर सबको उसने अफेक्ट किया। So let's just take our physical bodies. From the time that the kingdom of darkness came into place, we had all types of diseases being manifested in our physical bodies. और अगर हम ये देखें, जब से ये अंधकार का राज्य आया तो हम ये देखते हैं कि हमारे शरीरों में कई बीमारियों से हम लोग ग्रस्त होने लगे। And for our souls, we had all sorts of psychological and diseases going up to demonic possession. और हमारे प्राण में हमने देखा कैसे कितने सारे मानसिक बीमारियां, इवन कई लोग तो बुरी आत्माओं से भी ग्रस्त होने लगे। So when Jesus came, he showed people what the kingdom of God was like. और प्रभु यीशु जब धरती पर मनुष्य बनकर आए तो उन्होंने अपने जीवन से दर्शाया, दिखाया कि ये स्वर्ग का राज्य किस तरह का है। He started healing people who were sick. और जो बीमार थे उनको परमेश्वर यीशु चंगा करने लगे। And people who were demon possessed were delivered. और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे उनको परमेश्वर उनको छुटकारा देने लगे। Could he do that just because he wanted to? और उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि करना चाहते थे या? The answer is no, he did that on the basis of something that was very legal. और प्रभु यीशु ने जो ये किया, बीमारी को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ा बाहर लोगों के शरीरों से, इसलिए किया क्योंकि एक लीगल अधिकार के साथ उन्होंने किया जो कुछ भी किया। So we're going to go to Matthew chapter 8.
अब हम मत्ती 8 में and we're पढ़ेंगे reading verses 16 and 17. और हम अब 16 और 17 आयत पढ़ेंगे। It says, when evening came, they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word, and he healed all who were ill. This was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. He himself took our infirmities and carried away our diseases. मत्ती 8 का 16 और 17। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन यशाया नबी द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। The prophecy in Isaiah was referring to the work that Jesus was going to do on the cross, which included bearing our curses, taking our sicknesses and diseases, and also taking our sins, all at the same time. और यशाया नबी उन्होंने भविष्यवाणी जो की थी, तो वो जो फिनिश्ड वर्क ऑफ द क्रॉस है, जो क्रूस का पूर्ण काम जो यीशु ने किया, उसके बारे में ये भविष्यवाणी थी। और उसमें हमें समझना है कि जब जो कार्य यीशु क्रूस पे किया, उन्होंने उसमें हमारे आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर सबके लिए उन्होंने उद्धार उत्पन्न किया। और स्पेशली जो श्राप से मुक्ति का काम उन्होंने हमारे लिए उत्पन्न किया, पाप से माफी का काम, क्षमा का काम उत्पन्न किया, शरीर के लिए हमारे हर टाइप की बीमारी, चाहे मानसिक या शारीरिक, उसके लिए एक हीलिंग बाम जो उन्होंने उत्पन्न किया दूसरे कार्य से। और जब यशाया ये भविष्यवाणी कर रहे थे तो ये सब इंक्लूडेड है उसके अंदर। समझने वाली बात है कि उसमें सब इंक्लूडेड था। We call that work the atonement because it is the work that makes us one with God. The word atonement is made up of an English word, at one meant. और ये जो वर्ड अटोनमेंट है अंग्रेजी में, ये हमें प्रभु के साथ एक बनाता है। उन्होंने अपने बलिदान से क्रूस पर हमारे लिए क्षमा प्राप्त किया और जो उनमें विश्वास डाले वो अब एक बन जाता है प्रभु के साथ। The only way that we could be made one with God is if an innocent man died for all of mankind's sins. सिर्फ एक ही तरीका था कि हमारे से पापी एक पवित्र प्रभु के साथ एक हो सकते थे। उसका एक ही तरीका था कि एक मनुष्य जिसने पाप न किया वो हमारे लिए हमारे ब्याह पे मरे। Now God, who's outside of time, could see that Jesus had already died for our sins. और पिता जो समय से परे रहता है, समय से ऊपर रहता है, वो ऑलरेडी देख चुका था कि प्रभु के यीशु जो है वो हमारे पापों के लिए मर चुके। So he could authorize Jesus to give us a preview. और तो उन्होंने फिर जीसस को अब ऑथराइज किया कि हाँ भाई तुमको ट्रेलर दिखा सकता है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देख लिया है अनंत काल तक सब कुछ कि तू तो अभी इनके पापों के लिए मरेगा, फिर तीसरे दिन जिंदा भी होगा। तो ठीक है, तेरे को एक मैं प्रीव्यू देने का मौका देता हूँ लोगों को कि राज्य कैसा है। So Jesus did what he did based upon him paying for our sins. और प्रभु यीशु ने जो भी किया, जो भी अधिकार के काम किए, इसलिए वो कर पाए क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। You see, the only reason why the devil has authority over you is because of the sins that you would have had accounted to you. So even हमारे जीवन में हमने देखा कि शैतान हमें जो परेशान करने का जो कारण है वो पाप है, हमारे जीवन की जो पाप है। Once the sin problem is removed, Satan has no authority over you. अगर ये पाप की प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो शैतान का फिर हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं बनता। When you see that, you will understand some of the miracles that happened through Jesus' ministry.
और अगर आप ये समझ सकते हैं तो फिर आप समझ पाएंगे जो इतने अद्भुत हीलिंग के मिरेकल्स या और सारे जो मिरेकल्स प्रभु यीशु द्वारा हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए। So Jesus was essentially saying, I have come to be the king and overturn the kingdom of darkness. और जब यीशु धरती पर मनुष्य बनकर आए वो बेसिकली ये कह रहे थे कि भाई मैं राजा हूं और मैं ये जो अंधकार का राज्य है इसको तो लट पलट करने आया हूं। In Mark chapter 2, we have an example of this that I would like to just concentrate on. और हम मार्कुस 2 में जाएंगे और I'm उसमें not going to get you to read it, or I'm not going to read it, but I'm going to get you to read it at your own leisure. मैं ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक चर्चा जरूर करूंगा इसके बारे में। But in that story, we have a man who was a paralytic. और इसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान था जो पैरालाइज था, पैरालिटिक था, who came to Jesus. और वो प्रभु यीशु के पास आया। He was brought by his friends. और उसके दोस्त एक्चुअली उसको लेके आए, खुद तो चल नहीं सकता था। And to cut the story short, Jesus healed him. और संक्षिप्त में अगर हम कहें तो यही हुआ कि प्रभु ने उसको चंगाई दी। But the way Jesus dealt with it was really interesting. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरा ये डील किया इस इंसान को, इसकी परिस्थिति को, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है। So what Jesus said to him was, "My son, your sins are forgiven." और उन्होंने, यीशु ने उसको ये कहा कि मेरे पुत्र तेरे पाप अब क्षमा हो गए। And this upset the Pharisees. और इस चीज ने जो फरीसी थे उनको परेशान। And they were upset because, you see, they had no concept of forgiveness of sins. और फरूसी इसलिए परेशान हुए क्योंकि फरूसी ये नहीं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई ये पापों के लिए क्षमा भी पापियों को मिल सकती। The closest picture they had was when they had the Day of Atonement. और थोड़ा बहुत अगर वो उसी को समझ पाते थे, उसी दिन था जो उनका एक दिन होता था, डे ऑफ अटोनमेंट जिसे कहते हैं, जो बलि का दिन था। And as far as they were concerned, only God could forgive sins. एंड उनके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार सिर्फ पिता जिसने धरती रची है वही पापों को माफ कर सकता है। And if you can hear it, you'll hear the devil also saying, "How dare you think you can forgive somebody of their sins?" और आप इमेजिन करें अगर शैतान वहां खड़ा होता तो वो क्या कह रहा होता, मौक कर रहा, तो भी ये कह रहा होता तू कौन है इंसान के पाप क्षमा करने वाला। What gives you the legal right to do so? तुम्हें कहां से अधिकार मिला लीगली ये सब करने के? So to prove that the man was forgiven of his sins, और जैसे प्रभु ने, यीशु ने कहा उस बिल्कुल वैसे ही ये जो आदमी है इसको अपने पापों से क्षमा मिली। Jesus tells the man to rise, take up his bed and walk. और प्रभु ने इस इंसान को कहा उठ खड़ा हो और अपना बिस्तर बोरे लेके चल। What we see is the kingdom being manifested before our eyes. और हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है वो हमारी आंखों के सामने वो उत्पन्न होता हम देख रहे हैं। See, the good news, that's what the gospel is. The good news was that mankind was no longer going to be held by the kingdom of darkness. और ये गुड न्यूज, सुसमाचार, अच्छी खबर यही थी कि अब अंधकार की शक्तियां अब इंसान को डोमिनेट नहीं कर सकती, उसको एक स्लेव नहीं बना सकती। And what Jesus was really saying was, I have taken your sins and I'm going to take them to the cross and pay for them. You are now freed. और प्रभु यीशु ये कह रहे थे कि तुम्हारे जो पाप की समस्या है इसको मैं डील करने वाला हूँ। आई एम द वन जो इसको डील कर रहा है और इसके कारण अब तुम अंधकार की शक्तियों के नीचे नहीं हो।
So the healing wasn't just a nice healing, it was a demonstration that the authority of Satan was broken. और ये जो अम, चंगाई इस व्यक्ति को मिली, इससे प्रभु यीशु ने ये भी दिखाया कि देखो, शैतान का अधिकार तोड़ने वाला मैं हूं। Jesus also did this with demonic possession. और उन्होंने जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग थे, उनके साथ भी उन्होंने यही किया, उनको भी And you उन्होंने can बंधुए से बाहर निकाला, स्वतंत्रता दी। and you can see that the enemy was really upset by every single healing and deliverance. और हम ये समझ सकते हैं कि जो शैतान था वो काफी परेशान था हर एक चंगाई के वाक्य से, हर एक जब दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला गया तो उसने उस चीज को, शैतान को बड़ा डिस्टर्ब किया। क्लियर है वो चीज। In addition to healings and deliverances, Jesus also turned water into wine, fed the 5,000, stopped storms. और लोगों को चंगाई देने और दुष्ट आत्मा को निकालने के अलावा भी प्रभु यीशु ने बड़े चमत्कार किए। उन्होंने 5,000 लोगों को 5 लोग ब्रेड से और 2-3 फिश से फीड किया, और उन्होंने जो तूफान था उसको शांत किया। See, from the fall, there was always a lack. जब पहली बार आदम हवा गिरे पाप से, तब से हमेशा एक घटी कमी की अवस्था में इंसान चला गया। From the fall, the earth reacted to darkness. और जब से आदम हवा ने अपना पहला पाप किया, तब से पूरी धरती भी ने भी एक अंधकार को एक प्रतिक्रिया दी, प्रत्युत्तर दिया। And Jesus was overturning that. और प्रभु यीशु उस सब इफेक्ट को वो उसको उलट-पुलट करके ठीक कर रहे थे। This should help us understand all those miracles. और ये सब हमें, जो मैं आपसे रोशनी बांट रहा हूँ, ये आपको मदद करना चाहिए समझने के लिए कि ये सारे चमत्कार लीगली किस बेसिस पे हुए। Okay, to save time, we now need to look at the legal act that happened. अब हमें ये देखना चाहिए कि लीगल एक्ट क्या था जिसके तहत जीसस, हमारे प्रभु, ये सब कर पाए। So Jesus had to die, he had to rise again, and he had to ascend and then return. सो प्रभु यीशु का मरना जरूरी था, उनका मौत से जीना जरूरी था, फिर उनका स्वर्ग जाना जरूरी था। If he did not die, none of your sins were paid for. अगर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए नहीं मरे होते तो हमारे किसी भी पाप के लिए पेमेंट नहीं हुई होती, और हम आज उन्हें पापों में होते क्षमा ना मिलती। If he didn't rise again, we would never know that his sacrifice was acceptable. अगर वो अपने मौत से तीसरे दिन नहीं दोबारा जिंदा होते तो हम कभी भी एश्योरेंस नहीं हो पाते, हम समझ नहीं पाते हम कि भाई सही में अब हमें अपने पापों से क्षमा मिल गई। If I offered to die for your sins, God would basically say, no, Zach, you're going to die for your own sins and you will be eternally separated and you will remain dead. अगर मैं जैक आपको कहूं कि मैं चलो आपके पापों के लिए मर जाता हूं, तो वो प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु जैक को बोलेंगे, भाई तू तो अपने पापों के लिए मर रहा है, तू नीरज के पाप के लिए थोड़ा मर सकता है। The person who rises from the dead, having claimed to take your sins, proves that they were initially completely innocent. और जब प्रभु यीशु तीसरे दिन मौत से जिंदा हो गए तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई मैं इनोसेंट था, बिल्कुल मैंने कोई पाप नहीं किया, और मैं जो मरा तुम्हारे पापों के लिए मरा, तुम्हारे पाप मेरे ऊपर लाद दिए गए थे, उनकी तुम्हारी क्षमा के लिए पाप। So Jesus proved that he was innocent. तो तीसरे दिन जिंदा होने से उन्होंने प्रूव किया कि वो इनोसेंट थे, और उन्होंने जो वो पाप रहित थे। But he had one more function to do. पर एक और काम अभी उनको करना था। He had to take his blood and sprinkle it right into the very throne room of God. एक और पर काम करना था कि अपना लहू उनको ले जाकर स्वर्ग में
परमेश्वर का जो सिंहासन है वहां पर अपना लहू को उनको स्प्रिंकल करना and then return to the earth. और फिर उनको वापस धरती पर आना। And by doing so, he will fulfill what we call Yom Kippur, or the Day of Atonement. और ये करने के बाद जो डे ऑफ अटोनमेंट है, बलि का जो दिन है, जो स्थापित है यहूदियों में, उसको फुलफिल वो कर रहे। And he did that shortly after his resurrection. और ये सब उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद किया। So in John chapter 20, verse 17, Jesus tells Mary that he says to her, "Don't cling on to me. I need to ascend to my Father and your Father, my God and your God." And this was him fulfilling that high priestly role. और यूहन्ना का 20:17 में यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। फिर मरियम मगदलीन चली गई वहां। So Jesus ascended that first time to fulfill his high priestly role. अब प्रभु यीशु हम देखते हैं कि उस समय पुनरुत्थान के बाद वो स्वर्ग गए और वो उनका जो एक याजक का, महायाजक का जो उनका रोल है वो कर रहे थे। And we see this in Hebrews chapter 9, verse 11 and 12. It says, "But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood, he entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption." और इब्रानियों की किताब में 9 से 11 और 12 हम पढ़ेंगे, परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ, तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बना था, इस सृष्टि का नहीं, और बकरों तथा बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। In the next chapter, chapter 10, in verse 19 through to 21, it basically tells us that we can therefore have confidence to come to God with a clear conscience, knowing that all our sins are paid for. और अगर हम इब्रानियों का 10 का 19 से 21 हम पढ़ें, तो बेसिकली पॉइंट यही है कि क्योंकि हमारे पापों का प्रभु यीशु ने हमारे अपने ऊपर ले लिए, उन क्षमा भी ली, अब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक साफ, एक अपने कॉन्शियंस, विवेक के साथ हम प्रभु के साथ जा सकते। That assurance enables us to boldly have faith in the work that Jesus did and expect things to change down here. और उससे, इस समझ से हमें एक बोल्डनेस मिलती है, करेज मिलता है, सामर्थ्य मिलता है कि हाँ भाई, अब बहुत कुछ चेंज होगा हमारे जीवन में। See, the blood was sprinkled in the heavens. तो यीशु ने अपने लहू को स्वर्ग में उन्होंने उसको छीटा। It is right before the throne room of God as an eternal witness that every single sin that you've ever committed or you will ever commit has been dealt with by that blood. और वो जो लहू प्रभु के सिंहासन, पिता के सिंहासन के रूप में स्वर्ग में जो लहू छीटा गया, वो आज अभी भी गवाही दे रहा है कि भाई ये लहू है, ये इंसानों के लिए बहाया गया, और जो भी प्रभु यीशु विश्वास डाले ये उसके लिए बहाया गया। It is the proof that you no longer belong to the devil. और ये प्रूफ है कि जिन्होंने सुसमझ में विश्वास डाला, अब वो शैतान के कब्जे में नहीं है, शैतान की दास्तां में नहीं है, वो स्वतंत्र है। The book of Colossians, he said,
In the book of Colossians, it says we are transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. और कोलोसी किताब में हमें कहा गया है कि हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अभी हमारा ट्रांसफर कर दिया गया है परमेश्वर के पुत्र के राज्य. So the gospel of the kingdom of God is to show you that God has done what is necessary so that you can live in something that you couldn't possibly imagine. So हम ये देखते हैं कि प्रभु के राज्य के बारे में बात करते हैं तो ये दर्शाया गया है कि कुछ ऐसा प्रभु ने हमारे लिए किया जो हम खुद अपने लिए नहीं कर सकते. It started from the work of the cross onwards as far as we're concerned. और हम देखते हैं कि प्रभु के क्रूस के कार्य से आरंभ हुआ. And the kingdom of God will come to its fulfillment in a political sense in the millennium when Jesus comes to reign on this earth and to remove every single evil source out of the earth. और ये कल्मिनेशन या इसका अंत या फुलनेस में हम कहें बेटर वर्ड होगा, ये परमेश्वर का राज्य इनॉग्रेट हुआ और लेकिन अब फुल अभी है और पूरा पूर्ण रूप से नहीं है. लेकिन जो पूर्ण रूप से ये प्रभु राज्य ये कब आएगा? जब प्रभु यीशु 1000 साल के राज्य के लिए आएंगे और राज करेंगे धरती पर. At the end of the millennium, the only person left that is evil will be thrown into the lake of fire, and all the people who have rejected Jesus would be thrown into the lake of fire, and we enter into eternity. और जब ये 1000 साल का प्रभु यीशु का राज्य खत्म होगा तब शैतान को और जिन लोगों ने प्रभु यीशु के से रिजेक्ट किया उन सबको आग का जो एक दरिया है उसमें डाल दिया जाएगा. So I call this the importance of the kingdom of God. और मैं इसको कहूंगा कि प्रभु के राज्य के कुछ महत्वपूर्ण बातें. And I'm submitting this to you so that you can, by faith, access all that God has for you right now. और मैंने ये आपसे बांटा है और अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें, प्रभु से बात करें और इसका एक बेनिफिट अपने जीवन में उठा सकें. You can see the kingdom of God coming into force on earth through your life. और आप अपने जीवन में प्रभु के राज्य को सिर्फ वचन में नहीं पर शक्ति के साथ आता आप देख पाएंगे. Not just for yourself but for other people. और सिर्फ आप ही के जीवन के फायदे के लिए नहीं परंतु अनेकों का फायदा हो आपके जीवन के द्वारा. Because your faith is in the finished work of Jesus. क्योंकि आपका विश्वास प्रभु यीशु के फिनिश्ड क्रॉस का जो कार्य उसके अंदर है. This is important for us in this time period. और ये समझना, ये प्रकाशन, ये रोशनी जरूरी है इस समय में समझना जिस समय हम जीते हैं. We have a limited amount of time left. ज्यादा समय नहीं है और कम समय और हमें समय का पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए, सही तरीके से हमें समय बिताना चाहिए. And I wanted to encourage you to take steps of faith and see the kingdom of God operating in and through your lives. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा था इस वचन बांटने से कि आप अपने जीवन में देखें कि प्रभु का राज्य शक्ति के साथ उत्पन्न हो और आप अनेकों के लिए आशीष कारण बनो. As you come out of this period of praying and fasting, I want you to expect God to use you mightily to do mighty things where you are. और मेरी यही प्रार्थना है कि ये फास्टिंग प्रेयर का जो एनुअल फास्टिंग में समय है आपका, इसमें जब आप निकलें बाहर तो एक नए अभिषेक के साथ, एक नए सामर्थ के साथ आप निकलें और प्रभु और बहुत ऐसा आप लोग इस्तेमाल करें. To expect God to change things that have troubled you personally in your life. और एक नई ऊर्जा के साथ आप निकलें और इस आशा के साथ निकलें कि अब जिन चीजों ने मुझे पहले परेशान किया था अब उन पे मैं जय पाऊं. Just like the paralytic man, you need to be able to see that you are forgiven and therefore Satan has no right over that area of your life that is troubling you. जैसे वो लूला लंगड़ा आदमी जो था उसके जीवन में उसने ब्रेक थ्रू देखा, ऐसे ही
आप भी अभी विश्वास से बाहर निकलेंगे कि जो चीजें जो परेशान कर रही थी अब आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकार तो मेरे पास है, so that you can get up and live. ताकि आप खड़े हो, आप भी जी सके. But this is not just a message for you, it's a message for other people. और ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ रोशनी नहीं है, ये औरों के लिए भी रोशनी है. Jesus taught his disciples to preach this kingdom and to go about healing all who are oppressed and raising the dead and casting out demons. और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करो और डेमोन्स्ट्रेट भी करो. So I'm encouraging you to consider this and to take steps of faith and believe God for more than you've ever seen before. और मैं चाहूंगा कि आप स्टेप्स ऑफ फेथ लें, विश्वास के स्टेप्स लें, और आप परमेश्वर को उम्मीद रखें उनसे, और बतेरे पराक्रम के कार्यों के लिए आपके जीवन के द्वारा हो, उसके लिए परमेश्वर के विश्वास में बढ़े. I pray that this was helpful to you. I understand there is so much more to look at in any of those topics, but I had to give something to you that would be sufficient for you. और मुझे ये आशा है कि परमेश्वर आपको मदद करेंगे, जो वचन मैंने आपके साथ बांटा है, और आप परमेश्वर के राज्य की अंडरस्टैंडिंग में, डेमोन्स्ट्रेशन में आगे बढ़े. God bless you. Thank you very much. और बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू Pastor Zach for taking time to minister to us light about the kingdom of God. Thank you.